आज के वीडियो में हम लोग ग्लो अप कंपनी क्वेश्चन करेंगे जो जून 2016 में पूछा गया था। अगेन इफ यू लुक एट द टोटल मार्क्स, द क्वेश्चन टोटल मार्क्स इज 15 marks and it carry 3 requirement. First is to calculate the total labor rate and total labor efficiency variance for the last quarter. So it carries 2 marks, so only calculation part. Then analyze the above total variance into the component part of the planning and operational variance in as much as the information allow. So total variance से ऊपर calculate करें उसको further we need to break down into the planning and operational variance as much as information allow us to do, and this is for the 6 marks. Then assess the performance of production manager for the last quarter, and this is pure theoretical which carries 7 marks. Okay, so let's read the scenario which is very small. So Globe company make a high quality gloves which it sells for an average of 180 per pair. So this is basically selling price of the each pair. Standard cost of labor for each pair is $42, and this is your dollar per unit, not dollar per hour. So means 1 unit ऑफ ग्लोब बनाने के लिए हमारा लेबर कॉस्ट कितना लग रहा है, दैट इज द 42, एंड स्टैंडर्ड लेबर टाइम फॉर इच पेयर इज 3. तो स्टैंडर्ड लेबर टाइम इज नाउ 3. सो एक पेयर बनाने के लिए वी नीड 3 hours ऑफ लेबर. ठीक है, और हमारा टोटल लेबर कॉस्ट एक पेयर बनाने के लिए कितना लग रहा है, 42. सो दैट मीन्स हाउ मच वी आर पेइंग फॉर द लेबर पर आवर, 42 डिवाइड बाई 3, 14, right? So if you calculate 42 divided by 3, it will give 14. So we are paying labor 14, that is dollar per hour, and each pair of glove need 3 hours of labor, that is 3, and 14 multiplied by 3, it will give the cost of 42. So means each pair is taking the labor cost of 42. ठीक है. In the last quarter, Globe has a budgeted production of 12,000 pair, although actual production was 12,600 pair. In order to meet demand, 37,000 hours were used to complete the work. There were no ideal time. Means ये हमारा whatever the amount has been paid is equal to worked hour. So यहाँ पे कोई भी आइडियल टाइम नहीं है, वो वाली केस है. तो टोटल लेबर कॉस्ट फॉर द क्वार्टर वाज 531930. ये हमारा कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट जो हम लोग निकालते हैं ना AR into AQ करके, वो वाली कॉस्ट है. At the beginning of the last quarter, design of globe was changed slightly. तो basically अब वो planning और operational variance का information यहाँ पे include कर रहे हैं. The new design required worker to sew the company logo on the back of the every globe made, and estimated time to do this was 15 minutes for each pair. So now they have designed the globe. कल हम लोग ने क्वेश्चन किया था स्कूल यूनिफॉर्म, उसमें भी इस टाइप का कुछ पार्ट इंक्लूड किया गया था. अगर आप वो क्वेश्चन अच्छे से समझे हो तो ये पार्ट भी आप अच्छे से कर सकते हो. However, no one told the accountant responsible for updating the standard cost and the standard time for pair of globe need to be changed. Similarly, although the worker were given 2% pay rise at the beginning of this quarter, last quarter, accountant was not told about this either. Consequently, standard was not updated to reflect these changes. तो बेसिकली स्टैंडर्ड हमारा कॉस्ट का रिवाइज होना चाहिए था, बिकॉज बेस्ड ऑन दिस चेंजेस वो अपडेट नहीं हुआ है. अब तो मैनेजर का परफॉर्मेंस हमारा पुराना वाला स्टैंडर्ड प्लस एक्चुअल परफॉर्मेंस जो नेगेटिव में दिखेगा उसके बेसिस पे इवैल्यूएट होगा, जो कि फेयर बेसिस नहीं है. When overtime is required, workers are paid 25% more than the usual hour rate. तो information काफी कम दिया हुआ है और we need to do lots of things. So let's move to the calculation part. और फिर से हम लोग सिनेरियो पढ़ के एक एक information पिक करके कैलकुलेशन में ब्रिंग करेंगे. So अगर आपने कल के पार्ट अच्छे से समझा, ये पार्ट भी अच्छे से समझ जाओगे. It's very easy. Okay?
तो लेबर का सिंपल फॉर्मूला कल हम लोगों ने पढ़ा था, पर सिंपल जब हमारा वर्क आवर इज इक्वल टू पेड, दैट मीन्स यहाँ पे कोई आइडल टाइम नहीं है, जो कि क्वेश्चन ने क्लियरली मेंशन कर दिया है। तो उस केस में हमारी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, एस आर पहले लिखेंगे, फिर एस आर, देन वी विल हैव ए आर, देन इनटू ए एच, इधर से हम लोग फिर से अगेन एक बार और ए एच से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड हियर वी विल हैव ए एस एच, ठीक है, एंड वी विल गिव द नेम ए बी सी. So if you remember yesterday formula, I will show my PDF as well. This one is for material advanced formula, which would be not applicable here. We are just doing simple one basic, which we have learned in F2 as well. So this is for material. Yes, here it is. So labor, right? So here we have two case, one where working hour is equal to paid hour, that means there is no idle time, and second case is where working hour is not equal to paid hour, that means there is idle time. Okay, so now difference of A and B, A minus B we will do, it will be our labor efficiency variance. If we will do B minus C, it will be our labor rate variance. All right, and the question have asked the same. All right, so now let's move to the question again one more time, and let's try to find out the information that we need. We need SR, we need SH, we need SR, SH, AH, and AR. Okay, and I think AR into AS, they have already provided the figure, ready-made figure. I remember here it is. So we don't need to perform any calculation for this. So they have already provided this figure. So now let's read the requirement, background one more time, and then we will figure out this figure that we need to perform the calculation. So सबसे पहले they have provided us the selling price, which is not no longer valid here. Then standard cost of labor for each pair, that is 42. See, one more time I am saying this 42 is, so 42 they have given is, this is our dollar 42 cost, which is per unit. Per unit means per globe, each pair, per pair of globe. Okay, and they also provided us the figure that one pair of globe require 3 hours of labor. So 3 hour per unit. So that means दिस 42, हाउ दिस कम अप, ये 42 कैसे आया होगा आपको पता है? सो पहले हम लोग लेबर को एक घंटे के लिए कितना पे कर रहे हैं, सो इट विल बी 42 डिवाइड बाई 3, सो दैट मीन्स 14. सो लेबर को हम लोग एक घंटे के लिए 14 पे कर रहे हैं, दैट इज द डॉलर 14 पर आवर, और हमको 3 घंटा लग रहा है एक यूनिट बनाने के लिए, दैट मीन्स वन पेयर ऑफ ग्लोब. ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे. सो यहाँ पे आपका आवर कैंसल आउट हो जाएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर आएगा, इट विल बी डॉलर 42 पर यूनिट. ठीक है, सॉरी थोड़ा जुकाम हो गई है मुझे, मे बी मेरी वॉइस थोड़ी बारिश भी साउंड कर रहा होगा, आई एम रियली सॉरी. तो यहाँ पे ये 42 ऐसे बना हुआ है. सो एस आर क्या है हमारा, ये डॉलर पर आवर था. रिमेम्बर मैंने कल भी ये चीज बोला हुआ था आपको. अगर यहाँ पे देखोगे ये एस आर क्या है, डॉलर पर आवर. सो डॉलर पर आवर मीन्स ये हमारा हो जाएगा 14, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 14, ये हो जाएगा. ठीक है, और ऐसे मैंने बताया था आपको, एक यूनिट बनाने के लिए बजटेड आवर कितना लग रहा है, दैट इज द 3, और एक्चुअल में हम लोगों ने कितना प्रोड्यूस किया है वो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है. एक्चुअली वी 12,600, सो 12,600 तो ये हमारा टोटली आवर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. ये फिगर 42, पता है आपको वेरिएंस के फुल क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यही पार्ट है, यही दोनों पार्ट है जो स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं. समटाइम आपको ये डायरेक्टली दिया होगा और समटाइम 3 वाला डायरेक्टली दिया होगा, ये 42 नहीं दिया होगा. और यहाँ पे आपको 42 दिया था,
पर आपको आवर दिया, आवर पर यूनिट दिया, ना कि डॉलर पर आवर, सो वो आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ा। एग्जाम में पैनिक होके मिस्टेकली यहाँ पे स्टूडेंट 42 भी यूज करते, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अभी रॉन्ग भी नहीं बोलूंगी, अभी मैं बताऊंगी अभी और क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं। ये सिचुएशन पे मैं फिर से आऊंगी एक बार और, अभी फिलहाल कर लेते हैं जो हम लोग कैलकुलेशन करना है। तो एक्चुअल आवर हमारा कितना यूज हुआ था? एक्चुअल आवर यूज हुआ 37,000 और ये भी क्या है? आवर है। ठीक है, अब ए आर तो नहीं चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली ये ए आर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दिस डिवाइड बाई दिस करोगे तो आपका ए आर आएगा, और ये भी आपका डॉलर पर आवर, पर ये चाहिए नहीं क्योंकि हमको रेडीमेड फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब फिगर रख के हम लोग फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये इंटू ये, ठीक है, सो ये हमारा कैलकुलेशन का पार्ट हो गया। तो अगर इफिशिएंसी का हमारा ये माइनस ये डिफरेंस करके निकलेगा इफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, और जबकि आपका रेट दिस माइनस दिस करके निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा हेडिंग दे देती हूँ मैं, वर्किंग किया कह के, है ना, ताकि एग्जामिनर को पता चले वर्किंग। अब ये जो कि नेगेटिव है इट विल बी एडवर्स, एंड जो कि पॉजिटिव ये आपका फेवरेबल। एक बार देख लो आप लोग भी। ये थोड़ा अनप्रोफेशनल हो गया बिकॉज यहाँ पे देखोगे कि डॉलर है और जगह पे नहीं है, तो इसको थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। सो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैं यहाँ फॉर्मेट थोड़ा मैनेज कर रही हूँ। यस, परफेक्ट, सही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक ट्विस्ट देखो, ठीक है, ये केयरफुली समझना क्योंकि यही पे जगह है जो आप मिस्टेक करोगे। ये एसआर क्या था हमारा? एसआर था आपका 14 पर आवर। फिर एसएस क्या था? एसएस के लिए हमको दो फिगर चाहिए, एक फिगर बजटेड वाला कि एक यूनिट बनाने के लिए कितना आवर चाहिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 आवर पर यूनिट दिया है। ठीक है, और एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉट द बजटेड, क्योंकि एसेट्स का फुल फॉर्म ही यही है कि स्टैंडर्ड आवर रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। सो एक्चुअल प्रोडक्शन हम लोगों ने कितना किया था? क्वेश्चन में दिया था 12,600 पेयर, ये हमारा यूनिट में है। ठीक है, सो यहाँ से आवर कैंसिल होगा, यहाँ से यूनिट कैंसिल हो गए, फाइनल फिगर सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी वैल्यू में आएगी। एक और ट्विस्ट दिखाती हूँ। ये एसआर एसएस निकालने के लिए जैसे क्वेश्चन ने क्या दिया था हमको, 42 पर यूनिट, सो यूनिट को कैंसिल करने के लिए यूनिट ही चाहिए। सो ये अगर ये क्वेश्चन में आपको डॉलर पर यूनिट दिया हुआ है डायरेक्टली, इन दैट केस सिर्फ और सिर्फ आप डायरेक्टली एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करने पे भी आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आप देख सकते हो, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। 42 को इंटू डायरेक्टली 12,600 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उतना ही आंसर आएगा जैसे मैंने निकाला हुआ, जैसे आप समझो। बट यही पार्ट है जहाँ पे हम लोग मिस्टेक करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको वापस से समझाया आपको। सी कितना इजी रहा, कैलकुलेशन फटाफट हो गया। नाउ क्वेश्चन आस्क्स फॉर अस लाइक टू कैलकुलेट द प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस। ऊपर का जो बोला हुआ है क्वेश्चन में, जो हम लोग ने कैलकुलेशन किया उसको यूज करके प्लानिंग एंड ऑपरेशन में भी हमको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है उतना हम लोग को कैलकुलेट करना है। सो प्लानिंग ऑपरेशनल के लिए दिस इज आवर पार्ट 1 ऑफ द रिक्वायरमेंट। और ये नाउ हमारा पार्ट 2 आता है, पार्ट बी में अब हम लोग यही चीज को कॉपी फिर से करेंगे। ठीक है, कुछ चेंज नहीं होगा, सी यही वाला को कॉपी करते हैं एक बार और, क्योंकि प्लानिंग ऑपरेशनल वेरिएंस बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मेरे टेक्निक से समझ गए वेरिएंस को तो। ठीक है, यहाँ पे देखो इन दोनों में डिफरेंस किस वजह से आएगा? एसएच और एएच की वजह से। एसएच और एएच में बजटेड फिगर कौन है? एसएच है। तो यहाँ पे एसआर तो दोनों में सेम है, एसआर में फिर से लिखूंगी इनटू एसएच, और एएच में बजटेड फिगर कौन है? ये वाला, इसको हम लोग रिवाइज करेंगे, दैट विल बी आर एस एच।
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं, इन दोनों में देखोगे तो AH सेम है, AH को नो चेंजेस करेंगे, ठीक है। बट SR और AR, SR और AR दो है ना, सो SR और AR में बजटेड फिगर कौन है? SR। तो हम लोग SR को रिवाइज करेंगे, तभी तो प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंस की डिस्कशन होगी, राइट। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे SR रिवाइज। सो ये हो जाएगा नाउ आपका D और ये E। तो नाउ A माइनस डी देखोगे तो आपका हो जाएगा, ये आपका बजट और बजट का डिफरेंस है, लेबर इफिशिएंसी प्लानिंग वेरिएंस। नाउ D माइनस सॉरी जुकाम हो गई है, D माइनस बी करोगे तो आपका हो जाएगा लेबर इफिशिएंसी ऑपरेशनल वेरिएंस। सिमिलरली आप B माइनस ई रह जाएगा और E माइनस सी, E minus C. So B minus E will be our labor rate planning variance और सिमिलरली दूसरा वाला लेबर रेट ऑपरेशनल वेरिएंस, ये इतना रह जाएगा हमारा, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे भी डाला हुआ है मेरे PDF में इसका फॉर्मूला। अब यू कैन सी हेयर एज वेल, मैं दिखाती हूँ आपको, ये रहा एडवांस फॉर्मूला, ये आपका इल्ड वाला, आई थिंक इल्ड वाला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इल्ड मिक्स कब आएगा? जब वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ लेबर, इन दैट केस इट विल बी कमिंग, राइट। सी वही चीज है, ठीक है। अब हम लोग फिगर से क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पे हालांकि हम लोगों ने थोड़ा सा वर्किंग कर लिया है, इसको मैं वापस से कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। इसको मैं वापस से कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब क्या क्या मिसिंग है वो देख लेते हैं। एक चाहिए RSS, दूसरा चाहिए RSR, यही दोनों फिगर मिसिंग है, बाकी सब हमारे पास तो है। अभी वापस क्वेश्चन पे आते हैं। At the beginning of the last quarter, design of the globe was changed slightly, and the new design required news to save company logo on the back of every globe made, and the estimated time to do this was 15 minutes each for each pair. ठीक है। However, no one told the accountant responsible for updating the standard cost. ओके, सो ये आपका बजट वाले के पार्ट का है, मतलब परफॉर्मेंस के लिए कि वो स्टैंडर्ड कॉस्ट का कार्ड ने रिवाइज किया है। बट ये 15 मिनट जो बोल रहे हैं, बिकॉज अब ये लोग एक लोगो ऐड कर रहे हैं कंपनी का हर एक ग्लोब पे, है ना, उसके लिए उसका टाइम कितना है? 15 मिनट। सो पहले 3 घंटा लगता था और 15 मिनट एक्स्ट्रा और लगेगा। सो नाउ हमारा रिवाइज टाइम विल भी कितना हो जाएगा? आई थिंक कुछ यहाँ से मिस हो गया फिगर, ऐसा लग रहा है ना, ये यहाँ से है ना। तो अब हमारा रिवाइज ऐसे, तो ये वाला आपको ध्यान होगा। देखो हम लोग ने यहाँ पे थ्री लेके कैलकुलेशन किया था, है ना, यहाँ पे हम लोग ने 3 लेकर कैलकुलेशन किया था। नाउ आपका ये हो जाएगा 3 प्लस 15 मिनट एक्स्ट्रा है, सो नाउ डिवाइड बाई 60, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका रिवाइज स्टैंडर्ड आवर। और रिवाइज स्टैंडर्ड रेट के लिए भी उन्होंने बोला हुआ है, सिमिलरली ऑल्दो ऑल वर्कर वे गिवन ए 2% पे राइज। सो पहले हम लोग जो पे करते थे उससे हम लोग 2% पे राइज हुआ है, मतलब 102% से इंक्रीमेंट। सो हमारा अब एक्चुअल में लेबर को पे करना इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को पेस्ट करके हम लोग, एक सेकेंड, और भी कुछ है क्या? नहीं, तो चलो अब हम लोग वापस से सो ओवर टाइम के यहाँ पे जब करवाएंगे वो लोग 25% मोर पे करेंगे यूजुअल लेबर आवर हमारा रेट से, ठीक है। सो इसके बाद लो, ओके फाइन, हमारे पास सारा फिगर है, हम लोग फटाफट से कैलकुलेशन कर लेते हैं। एसआर आपका ये हो जाएगा, एसएस आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो ऊपर भी कैलकुलेट किया था, नाउ एसआर विल बी दिस इनटू आर एसएस, हमारा ये फिगर, SR will be this, और आपका AH will be this figure, then this one RSR जो नीचे है into AH ये वाला, and AR into AH,
ये वाला इतना हम लोगों ने कर लिया। इसी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबको फॉन्ट में हम लोग डाल देते हैं। सी फॉर्मूला लिंक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आप एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता कि एक-एक सेल जाके हम लोग एडिट करेंगे। इसीलिए आप फॉर्मूला को लिंक कर दो, बहुत अच्छा रहेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइम सेविंग हो जाएगी, अदरवाइज़ आपको एक-एक सेल जाके एडिट करना पड़ेगा, व्हिच विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग और क्वेश्चन फिर छूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उस केस में। ठीक है? तो ये आपका हो गया। Almost calculation done. So this is adverse, this is favorable, adverse, adverse. ठीक है, let me check. अब आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इट वॉज वेरी क्वाइट ईजी है ना, कैलकुलेशन के पार्ट। 6+2 8 मार्क वी इजिली स्कोर बाय डूइंग दिस कैलकुलेशन। मैंने हाईलाइट भी किया आप कहाँ पे मिस्टेक करोगे और कैसे। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये 25% का यूज किधर भी नहीं है क्या? ये यूज होता अगर हम लोग ने ओवर टाइम किया रहता तो, बट यहाँ पे ओवर टाइम का कहीं पे यूज नहीं हुआ है। सी अब यहाँ पे आपका ये एक्चुअल आवर को खास में चेंज करता है ना, कि हम लोग जैसे यहाँ पे एक्चुअल आवर वर्क वाज 37,000। ठीक है, अब हमारा डिजाइन चेंज हुआ तो उसमें क्या हुआ, हम लोग 15 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो 15 डिवाइड बाई 60 मीन्स इट मीन्स इतना आवर एक्स्ट्रा दे रहे हैं। पहले कितना था, 3 आवर्स। सो नाउ हम लोग एक यूनिट के लिए इतना आवर एक्स्ट्रा दे रहे हैं। एक्चुअल में कितना यूनिट हम लोग ने बनाया, 12,600। तो इसको कितनी आवर चाहिए, इतनी आवर चाहिए, बट एक्चुअली वी यूज 37,000 आवर्स, है ना। इस पॉइंट पे इन्होंने कोई डिस्कशन नहीं किया है कि अब एक्चुअल आवर चेंज हो जाएगा करके, रिवाइज हो जाएगा, ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं है ना। सो यही एज्यूम करते हैं कि 37,000 आवर्स ही हम लोग एक्चुअल में यूज किया, इवन दो वी हैव चेंज द डिजाइन। सो अगर ओवर पेड होता उस केस में एक्चुअल पेड भी हमारा ये रिवाइज हो जाता हमारा, ये हम लोग वर्कर नीड टू बी पेड 25% मोर देन द यूजुअल आवरली रेट। ठीक है, इसलिए अभी इसका यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ा। अब हम लोग आते हैं मेन वाले चीज पे, टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर फॉर द लास्ट क्वार्टर, जो कि हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट है। I have started for the part C, like controversial principle state that the manager, whether it's a production manager or any of the manager, their performance should only be assessed based on the factors which are under their control. So because if their performance are being like assessed based on the factor which are not under their control, it is totally unfair for them. It will reduce their motivation. Therefore, that's why we need to calculate the variance in more detail, like planning and operational, because looking at the initial result, initial means when we calculated the labor rate and labor efficiency variance, the first part of the requirement. So performance appears to us mixed, because if you remember, labor rate variance was negative, okay, and labor efficiency was favorable. So initially the performance need it appears to be mixed, because labor rate was variance was negative, while labor efficiency variance was favorable. However, if we break down this variable further into the planning and operation, we can have a better clarity regarding the manager performance. So this is what I have discussed in this paragraph, and now I have started to discussing in the detail. Like if we talk about the labor rate variance, it seems to be adverse. That initially it looked that some overtime was required to meet the additional demand. However, managers should not be blamed for this, because there was 2% rise in the pay which was not under the control of manager. That's why it seems to be negative. On the other hand, if we talk regarding the labor efficiency variance, it was favorable. This so that the worker completed the production in more efficient than we have expected, even after considering the additional time that was needed to add the logo on the back of the every glove, right? So total operational variance is favorable. It indicates that managers have really well done in their performance. And regarding the adverse planning variance of 13,360 and 44,100 should not be used to assist the manager performance, because they resulted from the standard not being updated
for the changes. So in this way you can discuss the performance of the production manager. So what you need to do is, because obviously while if we have read the scenario very carefully, you remember they have not updated the standard. So if we evaluate the performance of manager based on the part A calculation, obviously manager will not entitled for the bonus, they will be blamed, they will be scolded down, it will demotivate their performance. Sorry, it will their motivation will be really low, because here there are some factors which are not under their control, like the logo design which has been included, also the pay rise. These are beyond their control. So if we want to assess the performance of the manager, we need to calculate the further variance, that is the planning and operation. Now we have a better clarity regarding how actually manager have performed. So looking at our planning variance is negative, also our operational labor efficiency operational variance is favorable, whereas labor rate operational variance is negative, reverse. So now we need to assess the performance based on this figure which I have done below. I hope this is enough, because question was quite small एंड इतना काफ़ी है. अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कभी भी डीएम कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आज लिटरली जुकाम की वजह से उतना एफर्ट नहीं दे पा रही हूँ, सो मैं वीडियो क्लोज कर रही हूँ. अगर फिर भी आपको इस कंफ्यूजन में कोई दिक्कत होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में श्योर अपलोड कर दूंगी.